Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of physics. This is second class for first year physics. Students, in the previous lecture we have defined science. We have categorized science into its two branches, biological science and physical science. Students, उसके बाद हम लोगों ने फिज़िकल साइंस को भी फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई किया था, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. एंड देन वी हैव डिफाइंड फिज़िक्स. हम लोगों ने फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया था एज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैथ, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. उस बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में जो कुछ एप्लीकेशंस थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी. इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स we are going to define, once again we are going to define some basic concepts that you have gone through in your 9th and in your 10th class. Students, first of all we will define the term physical quantities. All those quantities in your life which you can measure are called as the physical quantities. For example, you can measure your mass of body. कैसे मेजर कर सकते हैं? सिंपली वेट मशीन पे जाते हैं, आप लोग अपना मैस मेजर कर देते हैं. सिमिलरली अगर आप स्टूडेंट्स एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ ट्रैवल करें, इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम हरीपुर टू एबटाबाद, इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम हरीपुर टू इस्लामाबाद, यू विल सी दिस साइन बोर्ड्स ऑन द रोड साइड. स्टूडेंट्स, वहाँ साइन बोर्ड्स के ऊपर डिस्टेंस लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस फ्रॉम हरीपुर टू एबटाबाद इज़ 35 kilometers. It means that distance can be measured, and if distance can be measured, then distance is a physical quantity. So come on the board, physical quantities, all those quantities which are measurable or observable are called as the physical quantities. You can also define it as all those quantities in terms of which laws and principles of physics can be defined are called as physical quantities. For example, there is the law of physics F equals to ma. F equals to ma. Force acting on body is equals to mass times acceleration produced in the body. This law is Newton's second law of motion. और आप लोगों ने अपने 9th या 10th क्लास में ये लॉ पढ़ा होगा. In this law, 3 physical quantities are involved: force, mass and acceleration. So from here we can see that all those quantities in terms of which laws of physics can be expressed are called physical quantities. Okay, now for the better understanding of these physical quantities we categorize them. हम लोग इनकी कैटेगरीज बना लेते हैं. द फर्स्ट आर कॉल्ड एज द बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड द सेकेंड आर कॉल्ड एज द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. लेट्स डिफाइन वन बाय वन बोथ ऑफ देम. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम दैट दीज आर द बेस फिजिकल क्वांटिटीज़. मतलब कि वो क्वांटिटीज़ जो इट्स सेल्फ बेसिक हों, जो इट्स सेल्फ फंडामेंटल हों, जो बाकी किसी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड ना करती हों, दैट क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज दी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़. स्टूडेंट्स, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यू कैन सी दैट आई हैव मेंशन्ड 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़. फर्स्ट लेंथ, सेकेंड mass, third time. Okay. The second class is the derived physical quantities. Friends, it is clear from the name that these are those quantities that are derived. Now, from where they are derived? These quantities, that is derived physical quantities, are actually derived from base physical quantities. आपके पास base physical quantities है, आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, उनको डिवाइड करते हो, तो जो नई क्वांटिटीज़ हमारे पास आती हैं दैट क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज दी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. तो अगर आप लोग इनके नाम भी अपने माइंड में रख लो तो आपको इनकी डेफिनेशन याद रहेगी. फ्रॉम द नेम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ you can say that they are the basic
they are fundamental. From the name derived physical quantities, you can say that these are those physical quantities which are derived. Okay, as an examples, area is a derived physical quantity. Now how you can write area? You write area as length multiplied by width या length multiplied by breadth. तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखो तो breadth भी एक लेंथ ही होती है, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई भी जो है वो एक तरह की लेंथ ही है. सो एरिया को सिंपली आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. नाउ लेंथ इज अ बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड आई हैव मल्टीप्लाइड टू बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड आई गॉट अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. सिमिलरली अगर आप लोग वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी को आप लोग किस तरह डिफाइन करते हो? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Displacement is what? Separation between 2 points, and separation is measured with the help of length. So you can say that velocity is simply length divided by time. So length is base physical quantity, time is base physical quantity. You have divided two base physical quantities and obtained a derived physical quantity. Third example, volume. कैसे लिखते हो वॉल्यूम को आप लोग? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. स्टूडेंट्स, विड्थ इज अ लेंथ, हाइट इज अ लेंथ. सो इन सिंपल टर्म्स यू कैन राइट वॉल्यूम एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. जस्ट सी हियर आई हैव मल्टीप्लाइड 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज and obtained a derived physical quantity. Okay students, there is a home assignment for all of you. You have to think about a quantity which is not a physical, that is a non-physical quantity, and in the next lecture I will tell you about the non-physical quantity. Okay, अब स्टूडेंट्स ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी मेजर ऑफ कोर्स हमें पता है ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये इट्सेल्फ फंडामेंटल हैं. तो इनकी मेजरमेंट के लिए हमें कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने पड़ते हैं. इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. सपोज दैट योर टीचर, आप फिज़िक्स लैब में जाते हो एंड योर टीचर आस्क्ड यू टू मेजर द लेंथ ऑफ वायर, टू मेजर द लेंथ ऑफ वायर. लेंथ इज़ व्हाट? बेस फिजिकल क्वांटिटी. सो आपके टीचर आपको कह रहे हैं कि आप एक बेस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें. सो हाउ यू मेजर द लेंथ, हाउ यू मेजर दैट बेस फिजिकल क्वांटिटी? वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करोगे? अपनी फिजिक्स लैब से मीटर रॉड लोगे और मीटर रॉड के साथ उस वायर को कंपेयर करोगे. सो यू डू व्हाट? यू जस्ट डिड 2 steps. द फर्स्ट स्टेप यू हैव टेकन द मीटर रॉड, second step you have compared the wire. So measurement of base physical quantity involves 2 steps. First one, that meter rod, and that meter rod is what? That is standard. So first thing that you need is a choice of standard. Second thing, meter rod लिया आपने, फिर क्या किया? उस वायर के साथ कंपेयर किया. So second thing you need is a comparison procedure. So we can simply say that for the measurement of any base physical quantity we need to take 2 steps. The first step, choice of standard. Second step, comparison procedure. एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं. सपोज दैट आप लोग जाते हो शॉप के ऊपर और शॉपकीपर को कहते हो, यू आस्क शॉपकीपर टू गिव यू 1 किलोग्राम शुगर. 1 किलोग्राम शुगर आपने लेनी है. शॉपकीपर सिंपली डू व्हाट? वो 1 किलोग्राम का एक स्टोन लेगा, फिज़िकल बैलेंस के एक साइड पे रखेगा और दूसरी साइड पे शुगर के साथ उसको कंपेयर करेगा. सो शॉपकीपर took 2 steps. The first step, he took the 1 kilogram stone, that is he took a standard, and second step he compared that standard with sugar. So second step is a comparison procedure. So from there we can conclude that for the measurement of any base physical quantity we need to take 2 steps. First, choice of standard. Second, measurement of comparison procedure. Okay, now
कोई भी एक आइडियल जो स्टैंडर्ड होगा आपके पास, उसकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. द फर्स्ट वन इज़ दैट स्टैंडर्ड शुड बी ईजिली एक्सेसिबल. सेकेंड वन इज़ दैट स्टैंडर्ड शुड बी इनवेरिएंट. इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझ लेते हैं. सबसे पहले ये इनवेरिएंट वाली प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं. स्टूडेंट्स, इनवेरिएंट मीन्स दैट समथिंग दैट डजंट चेंज. अब इस इनवेरिएंट का यहाँ पे क्या मतलब है? सपोज दैट आप लोग लेंथ को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हो वो क्या होगा? 1 मीटर रॉड होगा. जो मीटर रॉड की लेंथ हरिपुर पीस कैंपस के फिज़िक्स लैब में होगी, वही मीटर रॉड की लेंथ एबटाबाद पीस कैंपस में फ़िज़िक्स लैब में होनी चाहिए. वही मीटर रॉड की लेंथ मानसेरा में होनी चाहिए. वही मीटर रॉड की लेंथ पाकिस्तान में बनी हर फिज़िक्स लैब में होनी चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड एज इनवेरिएंस ऑफ द स्टैंडर्ड. सेकेंड थिंग, जो स्टैंडर्ड आप लोग यूज़ कर रहे हो वो आपको ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए. यहाँ पे भी फिज़िक्स लैब में ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, मानसेरा में भी आपको ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, एबटाबाद में भी ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए. Only then you can measure a base physical quantity with high accuracy. Okay students, and the next topic is the system of units. Of course आप लोग ये अपनी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. इनको एक बार हम लोग दोबारा रिव्यू कर लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये यूनिट होता क्या है. स्टूडेंट्स, आई हैव मेंशन्ड हियर यूनिट एंड मेंशन्ड हियर द वर्ड मेजरमेंट. स्टूडेंट्स, वो जो स्टैंडर्ड आप लोग यूज़ कर रहे हो for the measurement of base physical quantity, that standard is basically called as the unit. So you can define unit as the standard which is used for measurement of the base physical quantity is called as the unit. Okay, second, I have written here the word measurement. So students, जब आप लोग एक स्टैंडर्ड को एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहे होते हो, this process is called as the measurement. So how you can define measurement? You can simply say that the process of comparing a standard with unknown physical quantity is called as the measurement. Okay, now what is a system of units? Students, आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अगर आप लोग यूनिट्स लिख लें तो वो जो आपके पास एक कंप्लीट सेट बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, मेरे पास लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड. इसी तरह से मेरे पास बेशुमार फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. उन सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अगर मैं यूनिट्स लिख दूँ तो वो जो मेरे पास एक कंप्लीट सेट बन जाएगा, दैट सेट विल बी कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एंड वी हैव 4 इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स: CGS, FPS, MKS एंड सिस्टम इंटरनेशनल SI. तो हम लोग इनको वन बाय वन देख लेते हैं. CGS सिस्टम, इस सिस्टम में 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं: लेंथ, मास, टाइम. लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है. C and here I have centimeter and it starts with C. So the first alphabet here is a C. Secondly, the base physical quantity is mass. Mass is measured in terms of grams. So here G is C for gram. And thirdly, base physical quantity is time. And for this base physical quantity, the unit used is second. Second starts with S, and here I have S. So CGS, centimeter, gram, seconds. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो CGS सिस्टम है इसको गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है. आपको याद रखने की एक टिप ये है, यहाँ पे G अपीयर हो रहा है एंड G गॉसियन जो वर्ड है ये भी G से स्टार्ट हो रहा है. सो कीप इन योर माइंड दैट CGS सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गॉसियन सिस्टम. एंड देयर वाज अ MCQs in ETA that the unit of mass in Gaussian system was dash. तो गॉसियन सिस्टम आपको पता है CGS सिस्टम है. CGS सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम है. इट मीन्स दैट गॉसियन सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम है. सेकेंडली, CGS सिस्टम में कितनी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. बाकी सारी की सारी क्या होंगी? वो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट MCQs इज यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज डैश. The unit of force in CGS system is dyne, and 1 dyne is equal to 10 raised to power minus 5 newtons.
अभी के लिए स्टूडेंट आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल वैल्यू अपने माइंड में रख लेनी है। इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जब हम लोग डायमेंशंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि वाकई वन डाइन जो है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁵ न्यूटन्स। ओके, next system is the FPS system. Of course, here again we have three base physical quantities: length, force and time. Sometimes in the books you will see that here instead of force we have mass. I will explain that why there is a mass and why there is a force. अभी के लिए बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ FPS सिस्टम में हमारे पास तीन होती हैं: लेंथ, फोर्स एंड टाइम। लेंथ के लिए यूनिट जो हम लोग यूज़ करते हैं फोर्स है, लेंथ के लिए जो हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ फुट। फोर्स के लिए जो हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ पाउंड्स। टाइम के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ये कन्वर्जन एक देखो कि 1 पाउंड इज़ इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम्स। अब पाउंड को तो हम लोगों ने कहा हुआ है ये फोर्स है, तो ये फोर्स कैसे मैस के इक्वल है? सो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट जहाँ कहीं भी आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस भी जहाँ कहीं भी आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू एग्जैक्टली जी की वैल्यू एग्जैक्टली 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगी, वहाँ पे जो 0.4536 किलोग्राम मैस होगा उसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू दी 1 पाउंड। सो वी कैन से दैट 1 pound is equal to 0.4536 kgs under the standard conditions. So in this regard the pound is also used as a unit of mass, but purely the unit of mass in FPS system is slug and 1 slug is equal to 14.59 kgs. Students, ये दोनों जो MCQs हैं these are very important from the ETA point of view. Okay, the last system I have is the second last system is the MKS system. Here again I have three base physical quantities: length, mass, time. Unit of length is meter, unit of mass kilogram, unit of time second. Again meter starts with M, so here I have M. Kilogram starts with K, so I have K here, and second starts with S, so I have S here. So MKS means meters, kilogram and second. And the last system we have the System International SI system. In this system is different from all these systems in the regard that here we have the 7 base physical quantities. Students, inshallah in the next lecture we will study in detail about the System International. We will classify its students and we will go to the further complex concepts. Till that, stay safe, stay at home.